understand as the children of God. परमेश्वर के बच्चे के स्वरूप में एक सत्य हमें सबको समझना Our है। Lord is so faithful. Whenever we call on His name, He will never fail to respond us or answer us or do what we ask from Him. हमारा प्रभु इतना विश्वास योग्य है कि जब कभी हम पुकारे वो हमें उत्तर देने के लिए हमारे साथ आने के लिए बहुत ही विश्वास योग्य है। So especially when we come as a church of God, खास करके जब हम परमेश्वर के चर्च के तौर पे इकट्ठा आते हैं, that is a place where a church is a place of a place which God always pleased. कलीसिया वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर हमेशा संतुष्ट होता है। In this world, the pleasing place of God is a church of God. इस दुनिया में परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली जगह मतलब परमेश्वर का कलीसिया है। Because in the church, the real praises and the real worship which reaches to God. क्योंकि कलीसिया में ही सच्ची आराधना और सच्ची स्तुति परमेश्वर तक पहुंचती है। So we come as a people of God. We are in the place which pleases God. हम परमेश्वर के लोग बन के इकट्ठा आते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे जो जगह परमेश्वर को संतुष्ट करती है। Hallelujah. So for today's word meditation is this. आज के लिए वचन का मनन ये है, The outcome and the result of willingly when we offer ourselves to God. और जब हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करते हैं, So what outcome we will तब receive, क्या नतीजा हमें मिलता है, or what the result we are going to see in our day-to-day life. या हमारे रोजाना के जीवन में फिर हम क्या नतीजा So देखेंगे। why did I said it like this? मैंने ऐसे क्यों कहा? God is a compassion God. God is a graceful God. God is a loving God. Something He does out of His love, out of His grace, and out of His compassion. परमेश्वर एक प्यारा परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है, करुणावान परमेश्वर है। वो अपने दया से, अपने करुणा से या अपने प्यार से कुछ चीजें करता है। Some things without our expectation, without our willingness, or without we giving ourselves to God, still He is a loving God, still He is a merciful God, still He is a compassion God. He does something out of His character. और कुछ चीजें हमारे अपेक्षाओं से परे, हमने मांगने से भी ज्यादा वो उसकी दया से, उसके प्यार से, उसके करुणा से हमारे लिए करता He है। is a God with a full of love. और वो ऐसा परमेश्वर है जो प्यार से परिपूर्ण है। Out of His love, He does something in our personal lives which we are not deserved or which we are not expected sometime. और He does it. उसके प्यार के वजह से वो हमारे जीवन में ऐसा कुछ करता है जिसके हम लोग कोई अपेक्षा नहीं करते और जिसके हम लोग योग्य नहीं So हैं। listen to me carefully. That is a character and the nature of God. आप मुझे ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर का स्वभाव है। He wants to do only good for us. वो सिर्फ हमारे लिए भला करना He is चाहता a है। forgiving God. वो माफ करने वाला He परमेश्वर wants to है। show the favor to us. वो हमें कृपा दृष्टि दिखाना चाहता है। So this all is already there in Him. और ये सारी चीजें पहले से उसके अंदर है। So He is not a God with the wrong things or with the evil things. वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो गलत चीजों से या दुष्ट चीजों से भरा हुआ हो। Or He is not attracted by some good things. He is already good. या वो किसी भली चीजें से खुद आकर्षित नहीं होता, बल्कि वो खुद ही भला है। But one thing we should understand, लेकिन एक चीज हमें समझनी है, as God is in all His goodness, जैसे परमेश्वर उसकी सारी भलाई में है, in all His good character, उसके सारे अच्छे with चरित्र में the है, full of love, उसके पूरे प्यार के with the full साथ, of mercy and kindness, उसकी पूरी दया और करुणा से, a God with the full of grace. परमेश्वर पूरे अनुग्रह के साथ। But when He sees somebody in this evil world willingly giving himself to Him, then there is something, a great outcome He is going to do for us, or great result we are going to see in our day-to-day life. लेकिन जब वो देखता है कि कोई अपनी इच्छा से अपने आप को इस दुष्ट दुनिया में रह के भी अपने आप को परमेश्वर के समर्पित करता है, तब वो हमारे लिए एक अलग अच्छा नतीजा लाता है। That time the outcome is very different. और उस समय जो नतीजा आता है वो बहुत ही अलग That होता time the है। great things of God we will see in us
around us or in our day to day life. उस समय हम हमारे अंदर, हमारे इर्द गिर्द या हमारे रोजाना के जीवन में एक महान नतीजे को देखते हैं। This good God will not become good because we are good. ये अच्छा भला परमेश्वर वो इसलिए भला नहीं होता क्योंकि हम भले हैं। This loving God will not become more loving because we love Him. ये प्यार करने वाला परमेश्वर ज्यादा प्यारा इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम उसके ऊपर प्यार करते हैं। He has His character as a good God, as a loving God. उसका चरित्र ही एक भला परमेश्वर, एक प्यारा परमेश्वर ऐसा है। But when we willingly give ourselves to Him, लेकिन जब हम अपनी इच्छा से अपने आप को उसको सौंपते or हैं offer ourselves to Him, या अपने आप को उसको समर्पित करते हैं, then this good God, this merciful God, this loving God will do extraordinary things in our life. तब ये अच्छा परमेश्वर, ये भला परमेश्वर, ये करुणामय परमेश्वर ये अपने हमारे जीवन में असाधारण चीजें करता So है। that is what we are going to learn today, today from the Word of God. और परमेश्वर के वचन से आज हम लोग यही सीखने वाले We will हैं। turn our Bibles to book of Judges, और हमारे बाइबल से हम लोग न्यायियों की किताब and खोलेंगे, we will turn to chapter 5. उसमें से 5वां अध्याय खोलेंगे। The chapter 5 is a song of Deborah. और 5वां जो अध्याय है वो देबोरा का गीत है। So the book of Judges, where the book where people of God has forgotten God. न्यायियों की किताब वो किताब है जहाँ पे परमेश्वर के लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। If you read the book of Judges, there is a word which repeat again and again. न्यायियों की किताब अगर आप पढ़ते हो तो उसमें एक वचन बार बार आता So है। anybody who read, they will understand what I am going to tell. They will understand what I say. And the people who don't read, next time when you are reading, whether you come across with this word, that you can mark. और जिन्होंने इसे पढ़ा है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे वो समझ पाएंगे, और जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा है तो जो वचन मैं कह रहा हूँ उसको जब आप पढ़ने लगोगे तभी उसको मार्क करना। The book of Judges is the third generation of Israel. न्यायियों की किताब ये इज़राइल की तीसरी पीढ़ी के बारे में है। So that is chapter 2 verse 10 we read about that. और दूसरे अध्याय के 10 में हम लोग यही पढ़ते The हैं। people who are delivered from the Egypt were the first generation. जो लोग इजिप्ट से छुटकारा पाए वो पहली पीढ़ी थी। The people who were under Joshua were the second generation. जो लोग यहोशुआ के नीचे थे वो दूसरी पीढ़ी Now थी। the third generation is after Joshua. और जो तीसरी पीढ़ी है वो यहोशुआ की बाद So की we है। will read that word 2:10, then we can understand it better. और 2:10 ये वचन हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छी तरह इसे समझ पाएंगे। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों से मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उसके काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। So these are the third generation of Israel. तो ये इज़राइल की तीसरी पीढ़ी है। What is the danger with the third generation, you know? तीसरे पीढ़ी में खतरा क्या है That आप is what जानते we हो? read in the book of Judges. और वही हम लोग न्यायियों की किताब में पढ़ That we सकते read हैं। in verse 11. और वो 11वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। Israel did evil in the sight of God. इज़राइल ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। This is the word repeats in the book of Judges again and again and again. और न्यायियों की किताब में ये जो वचन है ये बार बार आता है। This repeats more than 15 times in the book of Judges. न्यायियों की किताब में ये जो शब्द, ये जो वचन है ये 15 बार से भी ज्यादा आते हैं। So they did evil in the sight of God. उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। So but in the middle of that, लेकिन उसके बीच में there were some people who are led by the Spirit of God. ऐसे कुछ लोग थे जो परमेश्वर के आत्मा से उन्होंने अगुवाई पाई थी। So Othniel was a person who was led by the Spirit of God. ओतनिएल वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के आत्मा से Gideon चलता was था। led by the Spirit of God. गिडियन परमेश्वर के आत्मा से चलता था। Deborah was led by the Spirit of God. देबोरा परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई पा रही थी। Samson was led by the Spirit of God. सैमसन परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई पा रहा था। Jephthah was led by the Spirit of God. जप्ता परमेश्वर के आत्मा से There पा रहे there थे। are some people who are led by the Spirit of God. ऐसे कुछ लोग थे जो परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई पा रहे And थे। these people who are led by the Spirit of God, they willingly gave themselves to God. और ये लोग जो परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई पा रहे थे उन्होंने अपने आप से खुद से अपने आप को परमेश्वर को In समर्पित the किया। time of the rebellious ways, जब विद्रोही के समय in the थे, time of disobedience, जब
आज्ञा भंग करने In के the समय time of थे, evil doing, दुष्ट करने के जो समय थे, God found few people giving willingly themselves to God. उस समय परमेश्वर को ऐसे कुछ लोग मिले जो अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के Those हवाले who कर रहे willingly थे। offered themselves for God and for His service, जो लोगों ने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर और उसकी सेवा के लिए समर्पित to किया, them God has used very differently in the midst of the evil people. और दुष्ट लोगों के बीच में इन लोगों को परमेश्वर ने बहुत ही अलग रूप से उनका Today इस्तेमाल God is किया। telling to us like this. आज परमेश्वर हमसे ऐसे कह रहा है, Around us we see this world is an evil world. हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि ये दुनिया दुष्ट दुनिया We है। see a rebellious people. हम विद्रोही लोगों को We देखते see a हैं, evil people. हम दुष्ट लोगों को We देख see a पाते हैं, disobedient people. हम आज्ञा भंग करने वाले We लोगों को देखते हैं, see a people who disobey God. और हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा भंग We करते see हैं। a people who does not seek God at all. हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं But ढूंढते, in midst of them, लेकिन इनके बीच God में is looking for the people who willingly offer themselves to God. परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देख रहा है जो अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं। Do the Lord is speaking to you? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा Are है? you ready to offer yourself to God willingly? क्या तुम अपने आप को परमेश्वर को अपनी इच्छा से समर्पित करने के Then लिए तैयार God हो? will do an extraordinary things through you, in you, and for Him. फिर परमेश्वर आपके अंदर आपके द्वारा उसके लिए असाधारण कार्य करेगा। So that is what we see here. God is doing. God has done for His people. और यहाँ पे हम लोग यही देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से ये चीज की So है। chapter 5 is a song of Deborah. पांचवा जो अध्याय है वो देबोरा का गीत है। Chapter 4, when Israel, chapter 4 verse 1 says like this. और चौथे अध्याय में ऐसे कहा है, We will read the word, okay? Chapter 4 verse 1. चौथा अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। जब यहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। See, again they have done evil in the sight of और God. फिर भी उन्होंने फिर से परमेश्वर की दृष्टि में Verse बुरा 4 किया। says, God has raised a prophetess Deborah there. और चौथा वचन कहता है परमेश्वर ने देबोरा नाम की एक नबिया को उसने खड़ा किया। God used a woman here. परमेश्वर ने यहाँ पे महिला का इस्तेमाल किया। So now God has chosen a prophetess. अब परमेश्वर ने नबिया को तैयार किया। So through her God brought a victory. उसके द्वारा परमेश्वर ने विजय को लाया। And chapter 5 is our song. पांचवा अध्याय उसका गीत है। And chapter 5 is our song. और जो पांचवा अध्याय है वो उसका गीत है। In this song, this word willingly appears 2 times. और इस गीत में ये जो स्वेच्छा से ये शब्द 2 बार आता है। Hope the Lord is speaking to you. मेरी आशा है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Now we are entering in the message. और अब हम संदेश में प्रवेश कर When रहे we हैं। offer ourselves willingly to God, जब हम अपने आप को परमेश्वर को अपनी इच्छा से समर्पित how करते हैं, God works in us. तो परमेश्वर हमारे अंदर What कैसे कार्य extraordinary करता things है, He will do. वो कैसे असाधारण How चीजें करता God है, will seriously do the things for Him. कैसे परमेश्वर गंभीर रूप से उसके लिए चीजें करवाता है। How this God will move in a different way. ये परमेश्वर कैसे अलग रूप से I चलता believe है। very strongly as I'm speaking this word, और मैं बड़े दृढ़ता से मैं विश्वास करता हूँ जैसे ये वचन में बात कर रहा God हूँ, is looking for somebody who willingly offer themselves to God. परमेश्वर ऐसे कुछ लोगों की ओर देख रहा है जो अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते If you हैं। are willingly offer yourself to God, अपनी इच्छा से अगर आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर I रहे हो, promise you will never miss the leading of the Holy Spirit in your life. तो मैं आपको अभिवचन दे रहा हूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप कभी भी नहीं खोगे। As Jesus said to His disciples, जैसे यीशु ने अपने शिष्यों से or कहा, Jesus said to the Pharisees like या this, यीशु मसीह ने फरीसियों से ऐसे the कहा, one who speak against the Son of God will be forgiven. जो परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध बात करते हैं उनको माफ किया The one जाएगा, who speak against the Holy Spirit will never be forgiven. लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात करेंगे उनको माफ नहीं किया That जाएगा। means इसका मतलब the ministry of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की सेवा cannot be offered to the person who is rejecting the Holy Spirit. उसको ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो पवित्र आत्मा को नकारता है। And at the same time, और उसी समय the complete ministry of the Holy Spirit is given to the people who are willingly offer themselves to God. पवित्र आत्मा की सेवा पूरी तरह उन लोगों को दी जाती है जो अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं। See, when
that we will read that word, okay, वो first. वचन हम पढ़ेंगे Chapter 5 verse 2 we will read, और 5वां अध्याय उसमें से दूसरा वचन and पढ़ेंगे then we will read verse 9. और उसके बाद 9वां वचन पढ़ेंगे। 5वां अध्याय दूसरा वचन। इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई उसके लिए यहोवा को धन्य कहो। They see, willingly when the people willingly offered themselves to God, praise the Lord, that's what he says. प्रजा जो अपनी इच्छा से भरती हुई इसके लिए यहोवा को धन्य कहो, So यही now ये we वचन will कहता है। see verse 9. अब हम 9वां वचन देखेंगे। मेरा मन इज़राइल के हाकिमों की ओर लगा है जो प्रजा के बीच अपनी ही इच्छा से भरती हुए यहोवा को धन्य कहो। Amen. Hallelujah. So willingly volunteer for the work of God. और That's what उन्होंने in परमेश्वर- English we read that. इंग्लिश में हम ऐसा पढ़ते हैं कि अपनी इच्छा से उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए भर्ती किया। So there some things changes in the translation. और भाषांतर में कुछ चीजें बदल जाती है। People willingly offered themselves for the service of God. परमेश्वर की सेवा के लिए लोगों ने अपने ही इच्छा से अपने आप को Means, उनको समर्पित किया। When Deborah took the lead, इसका मतलब देबोरा ने जब अगवा when the लीड women लिया, became a leader, जब वो एक स्त्री एक नायक बन when गई women stood for God, और जब वो एक स्त्री परमेश्वर के लिए खड़ी हुई and women said, I will go for God, और जब स्त्री ने कहा कि मैं परमेश्वर के लिए जाऊंगी, all the men said like this. तो सारे पुरुषों ने ऐसे कहा। They didn't show any differences. उन्होंने कोई भी फर्क उसमें नहीं दिखाया। Up to that time, उस समय तक no women leadership was there. कोई भी महिला कोई भी अगवा नहीं थी। All men were reigning the people of God. सारे जो पुरुष थे वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज Now कर रहे थे। suddenly when the women took the responsibility, और अचानक जब एक महिला ने उस जिम्मेदारी when the उठाई prophetess stood for God, और जब नबिया परमेश्वर के लिए खड़ी हो गई, prophetically moving by God, परमेश्वर के लिए नबियों की led तरफ पे वो by the चलने Spirit लगी, of God, परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई पाई, all the men willingly offered for the service of God. तो सारे जो पुरुष थे उन्होंने अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित None किया। of them said like this. उनमें से किसी ने भी ऐसे नहीं She is a कहा। woman. We will not accept the leadership. वो एक महिला है, उसकी अगुवाई को हम नहीं स्वीकारेंगे। They said like this. बल्कि उन्होंने ऐसे Whether she is a कहा, woman or a man, वो स्त्री हो या पुरुष this हो, is a time that we have to give ourselves, offer ourselves for the service of God. और ये वो समय है जो अपने आप को हमें परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना है। When willingly they gave to God, जब अपनी इच्छा से उन्होंने परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के oh, हवाले किया, something very differently God has done. तो परमेश्वर ने कुछ बहुत ही अलग रूप से किया। Hallelujah. And you know, the leadership of Deborah started in the midst of the people who were doing evil in the sight of God. तो क्या आप जानते हो कि देबोरा की जो सेवकाई थी वो दुष्ट लोग जो थे उनके बीच में शुरू हुई, Where there is no spiritual people at all. जहाँ पे कोई भी आत्मिक लोग नहीं थे। Brothers and sisters, भाई और बहनों, when you offer yourself willingly to God, जब अपनी इच्छा से अपने आप को तुम परमेश्वर को समर्पित करते God हो, will use in the midst of the evil people. तो परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल दुष्ट लोगों के बीच में God करता will है। do the great things in your life, through your life, in the midst of the evil people. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन के द्वारा दुष्ट लोगों के बीच में महान So कार्य we करता cannot है। say like this, हम ऐसा नहीं कह all पाएंगे are evil, that's why I will become evil. कि सारे लोग दुष्ट है इसके लिए मैं भी दुष्ट बन All are जाऊं। rebellious, that's why I also will become rebel. सारे लोग विद्रोही है इसके लिए मैं भी विद्रोही बन All are जाऊंगा। disobeying God, that's why I will disobey God. सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा भंग कर रहे हैं इसके लिए मैं भी परमेश्वर All की आज्ञा are भंग away करूंगा। from God, I will go away from God. सारे लोग परमेश्वर से दूर है इसलिए मैं भी No, परमेश्वर से no, दूर maybe जाऊंगा। all are away from God. नहीं, शायद सारे लोग परमेश्वर से दूर All है। may be doing evil towards God. शायद सारे लोग परमेश्वर के All प्रति दुष्ट may कर रहे be होंगे। doing rebel against God. शायद सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे होंगे। When you offer willingly yourself to God, लेकिन जब तुम अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित that करते makes हो, great difference for God. तो वो परमेश्वर के लिए एक बहुत ही महान फर्क लाता That है makes great things for God. और उसके द्वारा परमेश्वर के लिए महान चीजें होती That है makes God to move for you. और उसके द्वारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करने लगता है। Shall we say to God like this? क्या हम परमेश्वर को ऐसा कह सकते हैं? Shall we stretch our hands and tell to God क्या like अपने this? हाथ उठाकर हम परमेश्वर को ऐसा कह सकते हैं? Lord, I willingly offer myself to you. प्रभु, मैं अपनी इच्छा से अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित I करता हूँ। willingly offer myself for your service. मैं अपनी
इच्छा से अपने आप को तेरे काम I के लिए willingly हवाले offer करता हूँ। myself for the ministry. सेवकाई के लिए मैं अपनी इच्छा से अपने आप को I समर्पित willingly करता offer हूँ। myself for your will, O God. तेरी इच्छा के लिए मैं अपनी इच्छा से अपने आप को समर्पित करता हूँ Whatever प्रभु। you have a purpose for me, जो कुछ तेरा मेरे लिए उद्देश्य है, I willingly offer myself to you. मैं अपने आप को अपनी इच्छा से तेरे लिए समर्पित If you करता हूँ। genuinely prayed with me, अगर तुमने सच में अपने दिल से मेरे साथ प्रार्थना you की will है, see God doing a great things for तो you. तुम देखोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए महान चीजें Your eyes will करेगा। witness the supernatural things of God. तुम्हारी आंखें परमेश्वर के अलौकिक चीजों की साक्ष्य देंगे। Your whole body will experience the leading of the Holy Spirit. तुम्हारा पूरा शरीर पवित्र आत्मा के अगुवाई की साक्ष्य You देगा। will see the wonders God doing for you. तुम देखोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। Say to God like this, परमेश्वर को ऐसे कहो, let there be everywhere evil, O God. हर जगह दुष्ट चीजें होने दे Let परमेश्वर। everybody do evil to you. कोई भी तेरे साथ दुष्टाई से But behave I करने will दे। offer myself willingly to you for your work, O God. लेकिन मैं अपने आप को अपनी इच्छा से तुझे समर्पित करता हूँ तेरे I will कार्य के लिए offer प्रभु। myself willingly for your goodness and for your purpose, O God. मैं अपने आप को अपनी इच्छा से तेरी भलाई के लिए और तेरे उद्देश्य के लिए समर्पित करता हूँ परमेश्वर। In the midst of all evil things, इन सारे दुष्ट चीजों के बीच I में will offer willingly myself for your holiness. मैं अपने आप को तेरे पवित्रता के लिए समर्पित करता हूँ I will परमेश्वर। offer myself willingly for your kingdom work, O God. और मैं तेरे राज के काम के लिए अपने आप को अपनी इच्छा से Such समर्पित people करता हूँ God प्रभु। is looking today. ऐसे लोगों की ओर परमेश्वर आज देख God रहा is है। desiring such people today. परमेश्वर को ऐसे लोगों की आज इच्छा है। As we came as a church of God, जैसे हम परमेश्वर की कलीसिया के तौर पे इकट्ठा आए। God is looking for the people who willingly offer themselves to God. परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देख रहा है जो अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं। Under the old covenant, under the new covenant, पुराने करार के नीचे और नए करार के नीचे this willingly people offering to God has happened under the old covenant only 2 times. और ये अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित जो करना है वो पुराने करार में सिर्फ 2 बार हुआ है। That has happened under the leadership of Deborah and happened under the leadership of David. और वो देबोरा के अगुवाई के नीचे हुआ और दाऊद के अगुवाई के नीचे हुआ। There were near about 400 prophets God gave to the Israelites. और इस्राएल को परमेश्वर ने लगभग 400 नबी दिए। But we never see these people willingly offering themselves to God in any of the leadership. लेकिन हमने कोई भी अगुवाई के नीचे लोग परमेश्वर को अपने इच्छा से समर्पित होते हुए नहीं देखा। But it has happened only in 2 times under the 2 leaderships. लेकिन ये 2 अगुवाओं के नीचे ये 2 बार हुआ। It happened under the leadership of Deborah. It happened under the leadership of David. और ये देबोरा के अगुवाई के नीचे एक बार हुआ और दाऊद के अगुवाई के नीचे एक So बार why did this happen like that? ये ऐसे क्यों हुआ? This is what my faith. मेरा विश्वास This यही is what है। my understanding. मेरी समझ ये है When leader himself is willingly offering himself to God, जब अगुवा खुद ही अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित करता people है will automatically willingly offer themselves to God. तो लोग भी ऑटोमेटिकली अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित That is a करेंगे। speciality of Deborah and this is a special character of David. और देबोरा का और दाऊद का यही एक विशेष चरित्र है। That is the reason under the leadership, और इसी कारण से उसके अगुवाई के नीचे the people offered themselves willingly to God. लोगों ने अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित किया। When Deborah leadership came, और जब देबोरा की जो अगुवाई आई that is the first time वो पहली बार था a woman is giving herself for the service of God. कि एक महिला अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर रही थी। There is a message for all of us. हम सब के लिए यहाँ पे एक संदेश Who all है, are growing in the call of जो God. सारे लोग परमेश्वर की बुलाहट में Who बढ़ all रहे are हैं, used by God. जिन सारे लोगों का Who परमेश्वर all are इस्तेमाल growing कर in the रहा है, anointing of God. जो सारे लोग परमेश्वर के अभिषेक Who में all बढ़ are रहे growing, हैं, working for the vision of God. जो सारे लोग परमेश्वर के दर्शन के लिए काम कर रहे हैं, Learn to give yourself willingly to God. अपने आप को परमेश्वर को अपनी इच्छा से देने के लिए सीखो। I tell you, people will automatically give themselves to God. मैं तुम्हें बताता हूँ लोग अपने आप को ऑटोमेटिकली परमेश्वर को समर्पित करेंगे First उनकी Chronicle इच्छा से। chapter 29. पहला इतिहास 29वां अध्याय। There we read, this is a chapter 29 is a last ending of the leadership of David. और दाऊद के अगुवाई का ये 29वां अध्याय लास्ट अध्याय So अध्याय there है। we see that David is preparing
things for the building of the temple of God. और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के मंदिर को बांधने के लिए दाऊद चीजों को तैयार कर रहा है। There we see that he is preparing everything for the house of God. और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के भवन के लिए वो सारी चीजों को तैयार करके रख There रहा in है। verse 6 and verse 17 says like this. छठे अध्याय में और 17वें अध्याय में ऐसे 17वें वचन में ऐसे कहा Shall है। we read that verse? क्या वो वचन हम पढ़ेंगे? First Chronicles chapter 29 verse 6 and verse 17. पहला इतिहास 29वां अध्याय छठा वचन और 17वां वचन। तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इज़राइल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्त्रपति और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपने अपनी इच्छा से, This word is very good. अपनी अपनी इच्छा से. आमेन, ये बहुत अच्छा ही वचन है। Willingly they said, we will do the work of the temple of God. अपनी इच्छा से उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के भवन के लिए हम काम करेंगे। Yes, we will give and we will do for God. हाँ, हम देंगे और हम परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। So under David leadership this has happened. और दाऊद के अगुवाई के नीचे ये चीजें Why हुई। you know? क्यों आप जानते हो? The answer is on 17th. और In उसका verse जो 17. उत्तर है वो 17वें वचन में So है। what does it say? See what 17. तो 17वां वचन क्या कहता है उसे हम देखेंगे। वचन 17, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। Amen. Amen. You see, willingly he is giving. और वो अपनी इच्छा से वो दे रहा है। So we should understand one truth. एक सत्य हमें समझना है। In the book of Judges chapter 1 to 4, न्यायों की किताब में पहले से चौथे अध्याय तक willingly people offered themselves for sin. और अपनी इच्छा से लोगों ने पाप के लिए अपने आप को समर्पित किया। Willingly they gave. उन्होंने अपनी इच्छा से उसको They दे said, दिया। we want to sin against God. और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना चाहते हैं। But in chapter 4, Deborah willingly gave for the service of God. लेकिन चौथे अध्याय में हम देख सकते हैं देबोरा ने अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी इच्छा से समर्पित Brothers and किया। sisters, in this world we see people willingly giving themselves for the sin. भाई और बहनों, हम इस दुनिया में भी देखते हैं कि लोग अपने आप को अपनी इच्छा से पाप को समर्पित होते हैं। But God has chosen us to give willingly, to offer ourselves for Him and for His service and for a kingdom work, for His kingdom work. परमेश्वर ने हमें अपने आप को अपनी इच्छा से उसके काम के लिए, उसके राज के काम के लिए, उसके लिए हमें समर्पित किया है। When we give ourselves willingly to God, जब हम अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को देते हैं, what God will do, तो परमेश्वर क्या करता है? how God will move, परमेश्वर कैसे what कार्य great करता things है? God will do. परमेश्वर क्या महान चीजें करता है? Deborah, she proclaims in her song. और देबोरा अपने गीत में ऐसे घोषणा करती है। She says what God has done. और वो परमेश्वर ने क्या किया है उसे कहती है। So today the Lord is telling like तो this. आज प्रभु ऐसे कह रहा है That same God is here today. कि वही वो परमेश्वर आज भी यहाँ पे When है। you give willingly to God, जब तुम अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को He is समर्पित ready करते to do हो, the great things for you. तो वो तुम्हारे लिए महान चीजें करने के लिए तैयार है। Chapter 5 verse 4 and 5 we will read. 5वां अध्याय 4 और 5वां वचन हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। 5 यहोवा के प्रताप से पहाड़, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सिने पिघल कर बहने लगा। Amen. So when God see the people willingly giving to Himself, और जब परमेश्वर देखता है कि लोग अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित कर God रहे हैं, goes for His people. तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए God चाहता है। goes for that person. परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए चाहता है। God goes for that church. परमेश्वर उस कलीसिया के लिए चाहता God है। goes for that people. परमेश्वर उन लोगों के लिए चाहता है। That is what we see here. और वही हम लोग यहाँ पे When देखते हैं। Deborah gave herself willingly to God, और जब देबोरा ने अपने आप को इच्छा से परमेश्वर को समर्पित God किया, went for her. तो परमेश्वर उसके लिए चला गया। When God went for her, जब परमेश्वर उसके लिए चला गया, He Himself fought for His people. तो वो खुद ही अपने लोगों के लिए लड़ने लगा। He Himself. वो खुद ही। So God has seen
God has seen the willingness in Deborah, परमेश्वर ने देबोरा के अंदर वो इच्छा को देखा and he said like this, और उसने ऐसे कहा, I will fight for my people. मैं मेरे लोगों के लिए लड़ूंगा, I will go for my people. मैं मेरे लोगों के लिए चाहूंगा। When God sees a willingness in us, जब परमेश्वर हमारे अंदर इच्छा को देखता है, He will come for us. तब वो हमारे लिए आता Today है। God is telling to somebody, आज प्रभु किसी से कह रहा you है, may be seeing all failure around you. शायद तुम्हारे इर्द गिर्द सारी नाकामी को You तुम may देख रहे see होगे, all sinful thing around you. तुम्हारे इर्द गिर्द शायद सारी पापी चीजों को तुम देख रहे If you होगे। willingly give for God, अगर तुम अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर को He देते will हो, go for you. तो वो तुम्हारे लिए He will चाहेगा, fight for you. वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, He will do the great thing for you. वो तुम्हारे लिए महान चीजें He करेगा। needs a people who offer themselves willingly to Him. और उसे अपने आप को जो अपनी इच्छा से समर्पित करते हैं, ऐसे लोग We चाहिए। see that God is going for His people. हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों के लिए चाह रहा You है। test and see this thing. इस चीज को तुम जांच के You देखो, give willingly yourself to God. तुम अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित Without करो, without fail, He will go for you. और कोई भी असफलता के बिना वो तुम्हारे लिए चाहेगा। Verse 9 and 8 and 9 says like this. 8वां और 9वां वचन ऐसे कहता We है, will read what it says. और वो क्या कहता है इसे हम पढ़ेंगे। नए नए देवता माने गए, उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इजराइलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इजराइल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरती हुए। So English it says like the Lord choose the new leaders. और इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने नए अगुवाओं को चुना। But what does in Hindi says? हिंदी में कहता है, मेरा मन इजराइल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच अपनी ही इच्छा से भरती हुए। Okay, we see that God choose the new leadership. परमेश्वर ने नए अगुवाओं को चुना। As I said, the background of the Israelites. जैसे मैंने इस्राएल लोगों के पार्श्वभूमि को बताया, This is the third generation. तो ये तीसरा In पीढ़ी third है। generation, they don't know, the generation don't know God. तीसरे पीढ़ी में वो परमेश्वर को नहीं जानते, They were doing all evil and evil. वो सारी दुष्ट चीजें कर रहे थे। Out of them, what God has done, और उनके बीच में परमेश्वर ने God क्या saw किया? one person willingly gave herself to God. परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति ने अपने आप को परमेश्वर के हवाले अपनी इच्छा से किया। Among the new generation, उस नए पीढ़ी के बीच among the में, third generation, उस तीसरे पीढ़ी के बीच में God choose the new leadership. परमेश्वर ने नए अगुवाई को चुना। That means इसका मतलब God made a new decision. परमेश्वर ने एक नया निर्णय लिया। God said like this, परमेश्वर ने ऐसे though कहा, nobody knows me, कोई भी मुझे नहीं जानता, though this generation is a new generation, ये पीढ़ी नई पीढ़ी है, but फिर भी I found one person willingly offered themselves to me. लेकिन मुझे ऐसा एक व्यक्ति मिला जो अपने आप को अपनी इच्छा से समर्पित किया। Now I will choose the new leaders. और अब मैं नए अगुवाओं को चुनूंगा। Hallelujah. When the people forgets God, जब लोग परमेश्वर को भूलते हैं, so one person willingness will be a blessing for many. तो एक व्यक्ति की इच्छा दर्शाना कई लोगों के लिए आशीर्वाद बन One जाता person है। willingness has made a new things from God. एक परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के लिए नई चीजें God करती is है। looking somebody like that. परमेश्वर किसी की ओर ऐसे देख God रहा is है। looking our hearts. परमेश्वर हमारे हृदयों God को is देख looking रहा our है। mind. परमेश्वर हमारे मनों को God देख is looking रहा our है। spirit. परमेश्वर हमारे आत्मा God को is देख looking रहा this है। evil world. परमेश्वर इस दुष्ट दुनिया God को is देख looking रहा the है। sinful people परमेश्वर पापी लोगों की ओर who देख is रहा है, willingly giving themselves for the sin. जो लोग अपनी इच्छा से अपने आप को पाप में ढकेल In रहे the हैं। same time, उसी समय is looking one person who give willingly for his work. वो एक व्यक्ति की ओर देख रहे हैं जो व्यक्ति उसके काम के लिए अपने आप को अपनी इच्छा से समर्पित कर रहा है। God is really speaking to some people. परमेश्वर सच में कुछ लोगों से बात कर रहा Out है। of you, तुम में से, out of your willingness, तुम्हारी इच्छा as से, you offer yourself to God, जैसे तुम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते out हो, of you one more the new generation is going to come. तुम्हारे अंदर से एक नई पीढ़ी आने वाली Out है। of you a new leadership is going to come. तुम्हारे अंदर से एक नई अगुवाई आने Out वाली of you है। God will make a new choice. तुम्हारे अंदर से एक नया चुनाव परमेश्वर Let us करेगा। willingly offer ourselves to God. अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित Then we करेंगे। will see God doing the great things among us. और फिर हम देखेंगे परमेश्वर हमारे बीच में महान चीजें करेगा। Hallelujah. Very surprising thing in this song is
is very surprising thing for me in this song is this. और इस गीत में मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाली चीज ये है, That is in verse, that is in verse 20, 5 verse 20. और वो 5 के 20वें वचन में है, आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। Surprising thing for me this. और मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य करती है। Now who is fighting here? अब यहाँ पे कौन लड़ाई कर रहा है? The stars are fighting for the people of God. और जो तारे हैं वो परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। When God have somebody who willingly offer himself to God, the creation will move for God. जब कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित करता है तो पूरी सृष्टि भी उस व्यक्ति के लिए काम करती है। See, verse 23 says like this. 23वां वचन ऐसे कहता है, The angels of God fight for his people. परमेश्वर के दूत उसके लोगों के लिए लड़ते हैं। Now this we have heard many times. और ये तो हमने बहुत बार सुना That है। means when we give willingly to God, इसका मतलब जब हम अपने आप को इच्छा से हम the परमेश्वर को heavenly देते हैं, army is for us. तो स्वर्गीय जो सेना है वो हमारे लिए है। As somebody said like this, जैसे किसी ने ऐसे when कहा, anointed and the faith people, the people who love God kneels down. जब विश्वास के लोग, जो लोग परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं, जब वो घुटने पे आते When they हैं, kneel down in prayer, जब वो प्रार्थना में घुटने में आते हैं, whole heaven stands up. पूरा स्वर्ग खड़ा हो जाता That है। means whole army of God stands up. इसका मतलब परमेश्वर का पूरा जो सेना है वो खड़ा हो जाता Means they है। will be ready to listen to the command of God. इसका मतलब वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनने के लिए तैयार हो That जाते means when हैं। the anointed is praying, इसका मतलब जब अभिषेक प्रार्थना the Lord करते will हैं, command to the heavenly host and say, get ready now. What he is going to ask that you have to do. तब परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ, जो मांगेगा उसे पूरा करना है। Because my servant is praying. क्योंकि मेरा सेवक Because प्रार्थना my कर रहा anointed है। is praying. क्योंकि मेरा अभिषेक प्रार्थना कर रहा In this है। evil world, इस दुष्ट दुनिया में everywhere there is a disobedience. हर एक जगह पे आज्ञा भंगता Everywhere है। there is a selfishness. हर एक जगह पे वहाँ पे स्वार्थीपन Everywhere है। people are going on their own way. हर एक जगह पे लोग अपने मार्गों में चल रहे Everywhere हैं। people decide to do the evil. हर एक जगह पे लोग दुष्ट करने का But उन्होंने I निर्णय found लिया one है। person kneeling down and asking me. लेकिन मुझे ऐसा एक व्यक्ति मिला है जो घुटने पे आके मुझसे मांग रहा है। And the whole heaven is ready to listen to that person. और पूरा स्वर्ग उस व्यक्ति को सुनने के लिए तैयार हो The जाता whole है। heaven is ready to obey the command of God. पूरा स्वर्ग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हो जाता That is है। what we see in verse 23. 23वें वचन में हम यही देख पाते हैं। When Deborah willingly gave herself for God, जब देबोरा ने अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर को दे दिया, whole heavenly host was ready to fight for them. तो स्वर्गीय सब जन वहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार थे। So while the angels of God were fighting everywhere, और जब परमेश्वर के दूत लड़ाई कर रहे थे, destroying all the enemy of God, परमेश्वर के सारे शत्रु को नाश कर रहे थे, suddenly the angels of God noticed like this. अचानक परमेश्वर के दूतों ने ऐसे देखा The stars are fighting for the people of God. कि जो तारे हैं वो परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। Hallelujah. Do you believe on this? क्या तुम्हारा इसके ऊपर विश्वास है? If you believe, yes, it will happen. अगर तुम विश्वास करते हो तो हाँ, ये तुम्हारे If you साथ give होगा। yourself to God willingly, अगर तुम अपने आप को परमेश्वर के लिए अपनी इच्छा से समर्पित I करते tell हो, you, this is what is going to happen. तो मैं तुम्हें कहता हूँ यही चीज होगी। In the heavenly places, स्वर्गीय स्थानों in में, the heavenly places, स्वर्गीय स्थानों in the में, spiritual realm, आत्मिक दायरे में, the stars will fight for the people of God. जो तारे हैं वो परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ेंगे। That's how God will do His great wonders for us. और इसी तरह परमेश्वर उसके अद्भुत कार्य हमारे लिए करता The है। Lord is telling to some of you, प्रभु तुम में से कुछ लोगों को the कह रहा Lord is है, telling to all of us, परमेश्वर हम सबसे कह रहा do है, you see the evil around you? क्या तुम तुम्हारे इर्द गिर्द दुष्ट को देखते Do हो? you see do you see the rebellious ways around you? क्या तुम्हारे इर्द गिर्द तुम विद्रोही मार्गों को देखते हो? You no need to worry. तो तुम्हें चिंता करने की That's why जरूरत नहीं God है। said to David, that's why in Psalm 37, David says like this. और इसलिए भजन संहिता 37 में दाऊद ऐसे कहता है। Chapter 37 verse 1 we will read. 37वां अध्याय पहला वचन हम Do पढ़ेंगे। not fret because of the evildoers. जो दुष्ट लोग जो काम करते हैं उनके वजह से डरना मत। Many times, we get
we get fret because of the evil doers around us. और जो दुष्ट जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनकी वजह से कई बार हम डरते हैं। We'll see how does it says in Hindi, okay? और हिंदी में वो क्या कहता है उसे हम In देखेंगे। English it said, do not fret because of the evil doers. हिंदी में ऐसा है, भजन संहिता 37:1, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। Mat good, sometimes we'll get disturbed. और कई बार हम ऐसे विचलित हो जाते हैं, Sometimes we get angry. कई बार हम गुस्सा में आते We हैं, will be disturbed because of some people doing wrong. कुछ लोग गलत करते हैं उसकी वजह से हम लोग कई बार ऐसे विचलित हो But जाते today the हैं। Lord is telling like लेकिन this. आज प्रभु ऐसे Do कह रहा not है, fret because of the evil doers. जो कुकर्मी है उनके कारण मत कुढ़, But in the same time, लेकिन उसी you समय willingly offer yourself to God. तुम अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर को You समर्पित say, Lord, करो। I will give myself to you. तुम प्रभु को कहो, प्रभु मैं अपने आप को Let तेरे them be हवाले however they करता हूँ। are. वो कैसे भी Let होने them दो do whatever परमेश्वर, they are. वो जो कुछ करते हो उन्हें As for करने दो me, प्रभु। as for me, मेरे लिए I will offer myself willingly to you. मैं अपने आप को अपनी इच्छा से तुम्हें समर्पित करता That time हूँ। what happens, you know? उस समय क्या होता है The आप जानते हो? heavenly stars will fight for you. जो स्वर्गीय जो तारे हैं वो तुम्हारे लिए लड़ने लगते हैं, Oh, they will come and prepare a place for you. और वो आके तुम्हारे लिए जगह तैयार They will करते keep हैं। you safe. वो तुम्हें सुरक्षित रखते They will हैं। bring a defeat to the enemy. वो शत्रु को वो हार लाते हैं, And they will bring a victory to you. और वो तुम्हारे लिए विजय लाते हैं। That is what this night the Lord is promising. और इस रात को परमेश्वर यही अभिवचन दे रहा Such a supernatural things God is going to do for you. है। ऐसे अलौकिक चीजें परमेश्वर तुम्हारे लिए Not only the करेगा। heavenly angels will fight for you. सिर्फ स्वर्गीय दूत तुम्हारे लिए लड़ेंगे नहीं, Of course, the heavenly army is there for the people who willingly offer themselves for God. और जो स्वर्गीय सेना है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। Something supernatural the Lord will do. कुछ अलौकिक चीज परमेश्वर करेगा। The heavenly stars will fight for you. स्वर्गीय तारे तुम्हारे लिए लड़ने लगेंगे। In the spiritual realm, आत्मिक दायरे में there will be a big war, एक ऐसा बड़ा लड़ाई bringing a होगा। victory for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए वो विजय लाएगा। This afternoon the Lord is telling, इस दोपहर को प्रभु कह रहा है, maybe a lot of evil forces against you, शायद तुम्हारे विरुद्ध बहुत सी दुष्ट शक्तियां but होंगी, when you offer willingly, लेकिन जब तुम अपने आप को अपनी इच्छा से समर्पित करते हो the heavenly realms will fight for you. तो स्वर्गीय दायरे तुम्हारे लिए लड़ने लगेंगे। That is what we see here. और वही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। So the chapter 5 verse 21, 23 we have heard, and 20 we have heard, and now we will see in 21. 20 और 23 हमने पढ़ा है, अभी हम लोग 21वां वचन पढ़ेंगे। किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन हियाव बांधे आगे बढ़। So now you see, अब यहाँ पे हम देख now सकते the हैं, river is fighting for the people of God. और अब परमेश्वर के लोगों के लिए वो नदी लड़ने लगी है। See, God in his foreknowledge, परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में he saw that a woman is giving willingly for the service of God. उसने देखा कि एक स्त्री अपने आप को अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर रही She है। offered herself for the service of God. परमेश्वर की सेवा के लिए उसने अपने आप को समर्पित Then किया। God said like this, तब परमेश्वर ने she ऐसे has a कहा, little strength, उसके पास छोटी सी शक्ति है, she has a little experience. उसके पास छोटा सा अनुभव है, This is the first experience. ये उसका पहला अनुभव है। She is the first leader for the people of God, first परमेश्वर के- women leader for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए वो पहली स्त्री अगवा है। And God said like this, और परमेश्वर ने ऐसे Deborah, कहा, you have a little strength. देबोरा तुम्हारे पास थोड़ी सी शक्ति है, You cannot overcome this great army. तुम इस महान सेना को तुम विजय नहीं पा सकती। Now I will command the river to fight for you. और अब मैं आऊंगा, नदी आएगी और तुम्हारे लिए लड़ेगी। So now river roar with its power. और ये नदी ने अपने सामर्थ से अभी गर्जना Enemy की, were scattered. और शत्रु वहां से तितर बितर हो The गए। Lord is telling to somebody, परमेश्वर किसी से कह रहा है, you have a little strength. तुम्हारे पास थोड़ी सी शक्ति है, You have a little experience. तुम्हारे पास थोड़ा सा अनुभव है, You may be having a first experience. शायद तुम्हारा पहला अनुभव होगा, But the enemy army is very big.
लेकिन जो शत्रु की सेना है वो बहुत बड़ी है। But the Lord is telling like this. लेकिन प्रभु ऐसे कह रहा है, My son, my daughter, मेरे बेटे मेरे बेटी, if you willingly offer yourself to me, अगर तुम अपनी इच्छा से अपने आप को मुझे मेरे लिए समर्पित करते हो, I know your little strength. तो मैं तुम्हारी थोड़े से शक्ति को जानता हूँ। I will command the heavenly stars to fight for you. मैं स्वर्गीय तारों को मैं आज्ञा दूंगा कि वो तुम्हारे लिए लड़ेंगे। If the enemy is escaping from the heavenly stars, अगर शत्रु स्वर्गीय तारों से वो भाग जा रहे हैं, I will command the river to fight for you. तो मैं नदी को मैं आज्ञा करूंगा कि वो तुम्हारे लिए लड़ने What a लगे। great God we have. कितना महान परमेश्वर What a हमारा wonderful है। God we have. कितना अद्भुत हमारा As I said परमेश्वर in the है। beginning, He is a loving God. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो प्यारा परमेश्वर है, He is a merciful God. वो दयावान He is a परमेश्वर graceful है, God. वो अनुग्रहित परमेश्वर He is a है, God who does only good. और वो परमेश्वर है जो अच्छा ही करता But है। when He see the people who are offering themselves to God, लेकिन जब वो देखता है कि लोग अपने आप को समर्पित कर रहे this हैं, is what the extraordinary thing He will do. तो वो ये असाधारण चीजें करने लगता He will है। fight for you. वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, His army will fight for you. उसका सेना तुम्हारे लिए लड़ेगा। He moves with the new decisions in your life. तुम्हारे जीवन में नए निर्णयों से वो कार्य करता He है। makes the heavenly stars to fight for you. वो स्वर्गीय तारों को तुम्हारे लिए लड़ा देता है, He makes the rivers to fight for you. और वो नदियों को भी तुम्हारे लिए लड़ाई करने बोलता है। It will happen only by one person willingness. और ये सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा के वजह से होगा। Can we say to our God क्या हम today? हमारे परमेश्वर को आज कह सकते हैं? Maybe brothers and sisters, we also may be having a people around us who are always rebellious like a people of God. शायद भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों की तरह हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे विद्रोही लोग हो सकते हैं। But through you, God wants to do the great things. लेकिन तुम्हारे द्वारा परमेश्वर महान चीजें By करना your चाहता willingness, He wants to do the great things, great things for you. है। तुम्हारी इच्छा के द्वारा वो तुम्हारे लिए महान चीजें करना Today, चाहता God है। is looking somebody like Deborah. आज परमेश्वर किसी की ओर देबोरा की तरह Today, देख God रहा is है। looking somebody like David, आज परमेश्वर दाऊद की तरह किसी की ओर देख रहा है, who will willingly give themselves for the service of God. जो अपने आप को परमेश्वर के सेवा के लिए समर्पित करेगा While अपनी sharing इच्छा this से। word, ये वचन बांटते समय I can see God is looking for somebody who willingly offered themselves for the service of God in this 21st century. और मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर के लिए जो लोग अपनी इच्छा से समर्पित हो रहे इस 21वें शतक में, To such people, this is a prophetic message. ऐसे लोगों के लिए ये एक नबियों का संदेश है। You go for God for anywhere. तुम परमेश्वर के लिए कहीं पे भी चले You जाओ, do the work for God anywhere. तुम परमेश्वर के लिए कहीं पे भी कार्य करो। God will see your willingness, what you are offered to God. परमेश्वर तुम्हारी जो इच्छा है, जो तुमने परमेश्वर को समर्पित की है, उसे देखेगा। Now you see. अब तुम देखो, You're going to see with your eyes. तुम तुम्हारे आंखों से Your देखो, eyes are going to witness तुम्हारे आंखें साक्ष्य देंगी the great things of God. परमेश्वर के महान चीजों को।